हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं अपने वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स पे बात करूँगा, जो कि है कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म या फिर कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का 2.0 जिसका लाइट वर्जन या फिर कम्युनिज्म लाइट ही सोशलिज्म होता है। उस पर मुझे एक बहुत ही इंटेलिजेंट आज के समाज में, आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में जो एक पर्सन है, सदगुरु, उनकी एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म पे अपने विचार शेयर किए। कि किस तरीके की आइडियोलॉजी है वो, उसके बारे में लाइक वो क्या सोचते हैं। तो वीडियो देखते हैं और साथ साथ बात करेंगे उसके बारे में। Once we have chosen, there was a time about 20 years ago, 25 years ago, when India was vouching that we are a socialist country. 91 से पहले जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का, जब बर्बाद होने की कगार पे इकोनॉमिकली इंडिया आ गया था 91 में, जब बहुत बहुत महान व्यक्ति मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने थोड़ी सी अकल दिलाई यहाँ के प्रशासन को कि भाई इसको खोलो इकोनॉमी को वरना भिखारी बन जाओगे, उसके बाद से हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई है। वरना उससे पहले हम डंके की चोट पे अपने आप को सोशलिस्ट बोलते थे। इंडिया में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। समाजवादी पार्टी एसपी मुलायम सिंह यादव की, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी मायावती की, जो लोग जिन्होंने अपने नाम में समाजवाद लगा रखा था, जिसका सोशलिज्म मतलब होता है इंग्लिश में। एनीवे, देखते हैं। Socialism is a watered down version of communism. एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था कि कम्युनिज्म लाइट सोशलिज्म होता है। When you don't have the courage to be a communist, you become a socialist. और वो करेज पता है क्यों नहीं हो सकता कई बार लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को अब पता चल गया है कि कम्युनिज्म कितनी मर्डरस, मास मर्डरन आइडियोलॉजी है, जिसको जब आप अप्लाई करते हो तो मिलियंस की संख्या में लोग मरते हैं। Which has always been one of the serious problems with our nation, that we don't have the courage to say who we are, what do we intend. We'll always beat about the bush, always beat about the bush. ये एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, इसके बारे में पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, पूरी लंबी बात की जा सकती है 2-3 घंटे की। Which leaves everybody in confusion, because nobody knows where we want to go. So, communism as an idea is a fantastic idea. बट जस्ट एज Karl Marx might have known a lot about economics, but he knows very little about human beings. एग्जैक्टली ये बात मैंने कितनी बार, जब भी अपनी कम्युनिज्म से कोई रिलेटेड में वीडियो बनाता हूँ, कार्ल मार्क्स को टेक्निकली कैसे चलेगा उसका आइडिया पूरा था, सिस्टम स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, बट जैसे ही आप उसमें ह्यूमन नेचर को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद क्या होगा इस बात का कार्ल मार्क्स को ज़ीरो आइडिया था। He predicted that the richest nations in the world will become communist. People will share their wealth with each other, and how wonderful it's going to be the world. It's a fantastic dream. It's a beautiful dream. It's one of the best dreams the world has dreamed, that everybody will be equal, everybody will have everything, nobody has to… it's by our need, not by our greed. You may produce $1 billion, I may produce nothing, but you are willing to share with me. There's a very beautiful story, incident which happened when Mark Twain visited. He was so excited. Wow, rich are going to share their wealth with the poor, and everybody is going to be equal opportunity for everyone. This is fantastic. Everybody wanted, with lots of thinkers and authors from America traveled to Russia because they were so excited. This is it, the world is going to change. So Mark Twain was walking in a country road. A country's Russian gentleman was walking in front of him with 2 hens under his arms. He ran up to him, caught up, and he said, "Comrade, are you really a communist?" He said, "Yes, I am. I'm a party member." He said, "Is it true that if you have 2 bungalows, you will give away 1 to your comrade?" "Of course. If I have 2 bungalows, I will give away 1 to my comrade. I am a party member. I am an office bearer. If you have 2 carriages, will you give away 1 to somebody who needs it?"
Of course, I'm a party member, I'm the president in my village. I have to and I will. You have two hens, will you give away one of them? What the hell, that's all I have. यस, जब देने की बारी आती है ना, कई बार आपने हिस्ट्री में ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी कि किसी ने किसी को वादा किया कि आज मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है। मान लो दो स्टूडेंट्स थे स्टूडेंटशिप के दौरान, आई थिंक द्रोणाचार्य की स्टोरी है कि द्रोणाचार्य और राजा जनक या कोई ना कोई राजा थे उनके साथ, क्योंकि राजा जनक तो शायद उनसे डिफरेंट एरा में रहे होंगे। उनसे द्रोणाचार्य ने किसी राजा के साथ उनका ये पैक्ट हुआ कि वो दोनों ही उस वक्त स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट हमेशा से ही ब्रोक हैं। हज़ारों साल से, लाखों साल से स्टूडेंट जो होता है वो ब्रोक ही होता है। तो उन्होंने एक पैक्ट बनाया कि हम में से कोई भी अगर अमीर बना ज़िंदगी में तो दूसरे वाले की टेक केयर वो कर लेगा उसको, यू नो लाइक अगर मैं राजा बनता हूँ तो मैं तुम्हें अपने राज्य में इक्वल पार्टनर बना लूँगा, या फिर अगर तुम बनोगे तो तुम करना। तो ये वादा था। तो हुआ ये कि वो जो दूसरे किंग थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है इस वक्त उनका नाम, वो जब किंग बन गए तो उन्होंने अपने वादे से मुकर गए, द्रोणाचार्य को पहचानने से इनकार कर दिया उन्होंने। मैंने कब कहा, ये बात हो गई। तो जब कोई चीज़ ना हो ना तो उसके दिए जाने का वादा बहुत इजी होता है करना। ये ह्यूमन नेचर है, आपको लगेगा नहीं ये लॉजिकल, बट ये लॉजिकल नहीं है लेकिन होता है ऐसे। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती उसको दे देने का वादा करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब वो चीज़ आ जाती है तो उसके देने का जब वक्त आता है तो वो फॉलो अप करना उस पर बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए लोग क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसीलिए लोग अपना कर्जा खा जाते हैं। कई बार उनके पास पैसे होते हैं बट वो फिर भी पैसे नहीं देते। ह्यूमन नेचर का पार्ट है ये। और ये तो वो है जो कि वो ओ करते थे, और यहाँ तो कोई ओ नहीं है, यहाँ तो एक सिर्फ एक वादा है। तो यहाँ फॉलो अप और मुश्किल है। उसी का एक एग्जांपल है। और बाय द वे, आई एम नॉट श्योर कि मार्क ट्वेन ही होंगे, शायद इन्होंने भी थोड़ी गलती कर दी, क्योंकि मार्क ट्वेन कम्युनिज्म के आने के, क्योंकि कम्युनिज्म आया 1918-1919 में सोवियत यूनियन में, रशिया में। और मार्क ट्वेन, मैं श्योर नहीं हूँ कि उस वक्त तक ज़िंदा थे या नहीं, मुझे लगता है कि शायद पास अवे हो गए होंगे, क्योंकि मार्क ट्वेन वॉज राइटिंग समवेयर अराउंड 18, समवेयर बिटवीन 1850s एंड 1880s। मुझे एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है बट 1850 एंड 1880s के अराउंड वो लिखते थे। तो थोड़ा सा मुझे डेट्स में है तो मैं चेक करूँगा कि मार्क ट्वेन यू नो लाइक उस वक्त में रहे भी होंगे जब कम्युनिज्म रशिया में आया या नहीं, या ये किसी और व्यक्ति की स्टोरी है। So people wanted to give away what they don't have. यस। So when the poorest of the poor on the planet started talking about communism, communism became ugly. It's such a great idea. If the rich and the wealthy and the capable had taken it, world would have become an ashram. Yes, it would have been a perfect spiritual setting, really. ओके, सॉरी मैं चेक कर रहा था। 1910 में मार्क ट्वेन पास अवे हो गए, ही पास्ड अवे। तो या तो ऐसा हुआ होगा कि कम्युनिज्म आया नहीं होगा, उससे पहले ही मार्क ट्वेन ने शायद उसके बारे में सुना होगा और किसी बंदे से बात की होगी, और स्टोरीज़ तो बन जाती हैं, एक डिफरेंट रूप ले लेती हैं स्टोरीज़। और वो रशिया में प्रॉपर आए नहीं होंगे, बट यू नो लाइक इस तरीके से चीज़ निकाली, क्योंकि 1910 में रशिया कम्युनिस्ट बना है, सोवियत यूनियन बना है 1918-1919 में, और 1910 में मार्क ट्वेन passed away actually. Anyway, let's move on. If the rich had taken it, now the poor took up the idea. What they could not earn, they want to take it by beating. Banditry became a philosophy. Exactly. What should have been a fantastic process of sharing and giving and an embrace of humanity turned into an ugly idea. Most horrific things were… Actually ये इनबिल्ट था सोशलिज्म की ओरिजिनल आइडियोलॉजी में ही। इनफैक्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही उस बंदे ने लिख दिया था, कार्ल मार्क्स ने, कि जो प्रोलेटारिएट है ये उठ खड़ेगी बुर्जुआ के अगेंस्ट, बुर्जुआ यानी कि जो फैक्ट्री मालिक है उनके अगेंस्ट, और ये उनको ख़त्म कर देगी लाइक फिज़िकली, वायलेंटली। और फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन आएगा, और रिवॉल्यूशन had to be violent, it has to be violent according to Marx। तो ये इनबिल्ट था, ये जो बैंडेटरी है ये इनबिल्ट था। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा 3-4-5 मोस्ट कम्युनिस्ट अगर लोगे तो उसमें स्टालिन का नाम आएगा। स्टालिन कौन था? चोर लुटेरा था बेसिकली,
लूट 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 के सामान वो अपनी चीज़ें करते थे जो उन्होंने करनी होती हैं। और बेसिकली लाइक ठग था वो। और उस ठग को, ठगरी जो उसका नेचर था, वो उसने बाद में एज ए लीडर भी इम्प्लीमेंट किया जनता पे। done. During Joseph, और हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नेता बोलते हैं, और नेता हैं एक्चुअली, जो लोग वोट लेते हैं, और उन्होंने अपने आप को स्टालिन नाम दिया गया, जो कि हिस्ट्री में दूसरा सबसे बड़ा मास मर्डरर है आज तक। Stalin's time, they say over 27 million Russians died. This is 3 times the number that died in World War II. That many people, Russian people, died because the poor are trying to share something that they don't have. If the rich had shared, what a wonderful world it would have been. And the poorest of the poor talking about communism made it ugly. If the richest and the most capable on the planet had spoken about communism, it would have been the greatest idea. So we gave up that idea, and now we chose capitalism. Somebody very prominent in the world declared capitalism is dead, you know. So I was with him recently and he was talking, see, they printed like these headlines that I said capitalism is dead. Why it was called capitalism is because capital was only with certain people at that time. Now you have come ICICI Bank, I can also have capital, somebody else can also have capital. This was not the reality of the world 100 years ago. Only a few people on the planet were capable of capital. Nobody else had capital. So it became titled as capitalism. Now we are calling it market economy, driven by the market. Market means profit. No profit, you shouldn't talk about a marketplace. And when you have set up such a system, there is no room, in your vocabulary there's no room for the word greed. If you use the word greed, what it means is you're operating market economy with communism going around in your head. ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी चलती ही होप में है और चाहत में है प्रॉफिट की। और अगर आप प्रॉफिट की चाहत को ग्रीड बना दोगे, जो कि अगर आप ग्रीड वर्ड की डेफिनेशन देखो तो वो है भी, लेकिन मार्केट इकोनॉमी का तो लॉजिक ही वही है ना कि यू शुड बी ग्रीडी, और ग्रीडी नहीं, प्रॉफिट ड्रिवन बेसिकली। तो ग्रीडी एक नेगेटिव वर्ड है उस सोसाइटी के लिए जिसका कम्युनिस्ट माइंड हो या सोशलिस्ट माइंड हो, उसी को प्रॉफिट ड्रिवन बोल सकते हो आप मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी में यू विल बी ग्रीडी, ग्रीड इज द ड्राइविंग फोर्स। और उन लोगों को ग्रीड नेगेटिव वर्ड लगेगा जो ह्यूमन नेचर को समझते नहीं है। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मोटिवेशन इज़ डिराइव्ड बाय ग्रीड। इस सच को अगर लोग समझ लेंगे तो वो अपना जो दिमाग भेजा फ्राई कर लेते हैं इस तरीके की आइडियोलॉजीज़ में, वो नहीं करेंगे। क्योंकि एक्चुअली जो इस चीज़ों में लगे हुए हैं ना, वो भी उस चीज़ वो वैसी हो जाए जैसी वो चाहते हैं, उसकी ग्रीड की वजह से वैसा कर रहे हैं। Only if you're a communist you can talk about greed. If your market economy don't talk about greed, talk about better laws. If somebody is making $1 billion per day, let's tax him. Yeah. 900 million you can tax him and that will be distributed anyway. But enough to give him incentive to go on, not to take away his spirit. So this is how capitalism is managed. Here you don't talk about this whole corporate social responsibility. I think it's funny. It is just an eyewash. Instead of that, the government, if the administration, if it has the necessary sense, you can bring the right kind of policies where businesses can grow unbridled, but it will naturally benefit the rest of the society. This can be… इस पे लोग कहेंगे कि नहीं, जो अमीर लोग होते हैं वो तो टैक्स ब्रेक्स ले लेते हैं, वो किसी तरीके से टैक्स इवेड कर देते हैं। तो कौन कह रहा है भाई कि ये परफेक्ट सिस्टम है? ये सिस्टम सो फार बेस्ट है। ह्यूमंस की ग्रोथ और ह्यूमंस के वाइब्रेट होने के लिए, वाइब्रेट सही वर्ड नहीं है, ह्यूमन की ग्रो होने के लिए बेसिकली, लाइक उनकी जो अंदर की पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देने के लिए सो फार ये बेस्ट सिस्टम है। बट ये कहीं से भी कंप्लीट नहीं है भाई, वर्क अंडर प्रोग्रेस है। और ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन रियलिटी ऐसी है कि हर चीज़, हर एजुकेशन सिस्टम, हर इकोनॉमिक सिस्टम, हर लीगल सिस्टम वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा। कभी भी परफेक्ट होना बहुत दूर की बात है, पॉसिबल ही नहीं है। हम 200 साल पहले लोगों को की गर्दनें उड़ाई जाती थी पूरी दुनिया में बहुत ही छोटी छोटी, लाइक उन बातों पे जिन बातों पे आज कोई लाइक वुडंट इवन बैट एन आई। तो हम कंटिन्यूसली इवॉल्विंग एक
स्पीशीज़ हैं, एक बीइंग है, और इसीलिए हमारे सिस्टम्स भी कंटिन्यूसली इवॉल्विंग हैं। और बाय द वे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, इन्होंने 27 मिलियन बोला है, बट बहुत सारे एस्टिमेट्स कहते हैं कि मोर देन 100 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्शंस टेकन बाय, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्शंस टेकन बाय जोसेफ स्टालिन इन द सोवियत यूनियन। Be done with simple laws, taxation and other kinds of laws. Business laws can do this. There is no need to talk about service, there is no need to talk about greed. Everybody can live with dignity, because if you are the receiving end of the service, you lose your dignity. If you are at the giving end of the service, you go to heaven. Both are wrong. What I hear Sadhguru saying is profit is a good motive, and if you Yes, call profit it driven. greed, that greed is good. And Greed is I good. think that is something that profit is something that Now, companies if you recognize. look at the definition of greed, what is greed? See, for somebody who is walking ज़्यादा पाने की चाहत, और बेसिकली यही चीज़ कम्युनिज्म को ड्राइव करती है, सॉरी कैपिटलिज्म को ड्राइव करती है। to his workplace or his home, somebody who rides a bicycle and refuses to take him on the bicycle is greedy man. Somebody who is riding a bicycle sees a man driving a Maruti car and he thinks he's greedy. Just single man driving a Maruti car, he could take me, his family and my family in the Maruti car, because Indians are able to squeeze. A man who is driving a Maruti car, when a Mercedes or a BMW whizzes past him, he says vulgarity of greed. A man who is driving BMW looks at a man who is driving a Bugatti and he thinks that is greed. So who is to set this definition for what is greed? I am saying once you have chosen market economy, there is no room for that vocabulary in your life. You understand greed is the driving force. Now, it is for the laws to manage the greed so that your greed benefits everybody else. In African lore there is a saying, when the lion feeds, everybody else gets fed. Yeah. So if you are a lion, you have a big capability. When you feed, it is the laws which should make it in such a way, if you make profit, everybody should live well. Instead of talking about greed and service and corporate social responsibility, I don't know why they're deviating themselves into all this. So stay focused on maximizing profitability. Yes. Tax appropriately and let everybody grow. और एक चीज़ जो इन्होंने लास्ट में एड्रेस की ना, कि साइकिल वाला मारुति वाले को ग्रीडी बोलता है, और हमारे देश में मारुति वाला BMW वाले को और BMW वाला बुगाटी वाले को, उसमें चीज़ ये है, मुझे भी आई डोंट नो हमारी साइकी में ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम के थ्रू या कैसे ये भर दी गई है कि पैसा होना अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ है। फॉर एग्जांपल मूवीज़ में दिखाते थे जो लाला है वो गांव वालों को लूट रहा है, ठीक है, तो मतलब लाला अमीर बना है तो किसी को लूट के ही बना होगा। मूवीज़ में दिखाते थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमेशा विलन है, वो गरीब लोगों की झुग्गियाँ तोड़ के वहाँ पे मॉल बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हिस्सा इसमें ना मूवीज़ और पॉपुलर कल्चर का है, जिसने हमारा जो एक आम इंसान है उसके माइंड में ये चीज़ भर दी गई है कि पहली बात तो रिच होना और क्रिमिनल होना एक ही चीज़ है। क्योंकि हमेशा दिखाते थे भाई जो हीरो की स्मगलिंग कर रहा है, जो सोनी की स्मगलिंग कर रहा है, लाइक अमिताभ वगैरह की मूवीज़ में, या लाइक उस टाइप की जितनी भी मूवीज़ है, धर्मेंद्र की जितने भी हीरो थे उस टाइम उनकी मूवीज़ में, वो चोर हैं सारे के सारे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, रिच हैं, उन्होंने चश्मे लगा रखे होते हैं, और फुल कोई उनके अंदर जिसे कहते हैं मोरालिटी नहीं है, कोई ऐसी रिस्पेक्टेबल ट्रेड नहीं है उनके अंदर जिसकी वजह से उन्हें अच्छा समझा जा सके। तो यानी कि अमीर होना ऑटोमेटिकली तुम्हारा चोर या क्रिमिनल होना है बेसिकली। दूसरी चीज़ ये भर दी गई है कि अमीर होना एक गलत भी है, मोरली हाई ग्राउंड है उस बंदे का जो कि गरीब है, वो समहाउ ज़्यादा ईमानदार होगा। और ये माइंडसेट हटने में ना अभी टाइम लगेगा, जैसे जैसे जनरेशन पास होगी उसके साथ साथ ये माइंडसेट हटेगा। लेकिन इस पे अगर बात होगी तो शायद ये इसके हटने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इस तरीके की डिस्कशंस का है, जिसमें कि उन्हें बताया जाए कि भाई जब एक बंदा ऊपर उठता है ना तो वो अपने साथ लाखों लोगों की जॉब लेके उठता है, डिपेंडिंग ऑन वो। जैसे अडानी है, बहुत सारे लोग इस वक्त खुश हो रहे हैं कि यार चलो अडानी की कंपनी थोड़ा नीचे जा रही है, उनके शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, बिकॉज उनका जो उन्होंने IPO या आई थिंक FPO कहते हैं उसे,
जो उन्होंने निकाला था वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं गया, क्योंकि हाइडलबर्ग आई थिंक नाम है उस कंपनी का, जिन्होंने उसके अगेंस्ट जो भी रिसर्च की थी उसमें चीज़ें लेके आए थे वो, उनकी वजह से तो बहुत सारे लोग हिंडनबर्ग नाम है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से खुश भी हो रहे हैं कि लाइक अंडा अडानी और अंबानी लूट रहे हैं इस देश को बेसिकली। नहीं भाई, नहीं लूट रहे हैं। वो लोग हैं जो कंट्री में जॉब्स ला रहे हैं, काम ला रहे हैं दूसरे दूसरे देशों में, और जस्ट हमारी कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री में जाके भी लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। ये अभी कोई जिसे कहते हैं ना, जैसे रशिया की जो इकोनॉमी है, ओलिगार्की जिसे कहते हैं, इंडिया कोई ओलिगार्की सिस्टम नहीं है। अगर इंडिया का ओलिगार्की सिस्टम होता तब आप उस चीज़ को कॉल आउट कर सकते थे कि भाई कुछ लोगों का सिर्फ फ़ायदा होता है। नए इंडस्ट्रियलिस्ट, नई कंपनियां नहीं दिख रही, हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जो $1 बिलियन की मार्केट वैल्यू क्रॉस कर चुके होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न्स। आई थिंक यूएसए और चाइना के बाद थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे इंडिया है नए यूनिकॉर्न्स लाने में दुनिया में। तो कैसे कह सकते हो भाई इसको आप कि ये एक ओलिगार्की है? नए बिजनेसेस आ रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें कि यार कैसे भी करके चाहे सामने वाली पार्टी अच्छा भी कर रही हो, देश हित से मतलब नहीं है, सत्ता खुद के पास आए ये कैसे आएगी, ये एक तो मतलब है। दूसरा, बीजेपी को इनहेरेंटली कुछ कम्युनिटीज़ पसंद नहीं करती इंडिया में। खुल के बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम्स पसंद नहीं करते बीजेपी को मेजॉरिटी में। और भी कुछ लाइक जो खास तरीके के माइंडसेट से, लाइक जैसे कम्युनिस्ट माइंडसेट के जो लोग हैं वो भी नहीं पसंद करते। और मैं नहीं कह रहा सारे मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम्स पसंद भी करते होंगे जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ें कैसे होती हैं। और बट एक होता है ना, वोट बैंक भी बनाना होता है, गंवार लोगों को अपने पीछे भी लगाना होता है। तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनको एक खास तरीका का नैरेटिव दे के उनको उत्पीड़ित ही दिखाया, तुम्हारा तो उत्पीड़न हो रखा है। चाहे तुम ये ना देख लो कि जब कांग्रेस में तुम्हारा क्या हाल था, अब उससे बेटर है या ज़्यादा बुरा हो गया है। वो तरीके से लॉजिकली नहीं सोचते लोग। तो इस वजह से जो भी कुछ ऊपर जाता है, कोई भी व्यक्ति ऊपर जाने की कोशिश करता है या कोई अमीर बन रहा होता है या कुछ बड़ा कर रहा होता है, लोग ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव सेंस में लेने लगते हैं, जबकि उसे इंस्पिरेशन के तौर पे लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए उसकी जर्नी को कि भाई उसने कैसे किया वो चीज़ और मैं उस चीज़ को कैसे रेप्लिकेट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो एक अपवर्ड, पंजाबी में एक कहते हैं कि एक वर्ड है या एक सेंटेंस है, चढ़ती कला, मतलब तरक्की पे चलना। कि तरक्की पे कैसे जाए उसको छोड़ के लोग उन चीज़ों की तरफ ना ध्यान डालते हैं कि सामने वाले को नीचे कैसे गिराएं, उसकी रिस्पेक्ट को नीचे कैसे गिराएं, उसकी वैल्यू को नीचे कैसे गिराएं। इस तरीके का माइंडसेट ज़्यादा प्रिवेल करता है। तो होपफुली यार नई जनरेशन के साथ, नई एजुकेशन के साथ ये चीज़ें थोड़ी बेटर हो। हालांकि काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जिनसे कि ऐसा लगता है कि हम 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे आते हैं। बट होपफुली वो जो 1 स्टेप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे करके हम एक सही जगह पहुंच पाएँ।